Hello. మన కళాశాలలో జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి మన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ అస్లాం ఫారూక్ సార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నారు. అదేవిధంగా మన కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి సార్ గారిని వేదికపై ఆశీర్వాదం కావాల్సిందిగా కోరుచున్నారు. అదేవిధంగా ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ ఉర్దూ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ శ్రీమతి ఆయిషా బేగం, డాక్టర్ ఆయిషా బేగం గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నారు. అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కిరణ్మయ మేడం గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నారు. అదేవిధంగా రాజనీతి శాస్త్ర అధ్యాపకులు శ్రీ డాక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి సార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నారు. అదే శ్రీ తన్వీర్ సార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నారు. అదేవిధంగా ఫిజిక్స్ అధ్యాపకులు శ్రీ బాలాజీ సార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నారు. ఎకనామిక్స్ అధ్యాపకురాలు శ్రీమతి బదర్ సుల్తాన్ మేడం గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నారు. కామర్స్ అధ్యాపకులు శ్రీ సిద్ధప్ప సార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు, వివేకానందుడు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి వ్యక్తి. తన ఉపన్యాసాల ద్వారా ప్రపంచంలో చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్నటువంటి వ్యక్తి. తర్వాత వివేకానందుడు, ఆయన పూర్తి పేరు నారాయణ దత్. ఆయన 39 సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించినప్పటికీ ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా, ప్రపంచంలో గొప్ప మేధావిగా పేరుగాంచినటువంటి వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తి పేరు పైన జాతీయ యువజన దినోత్సవాన్ని 1984 సంవత్సరం నుంచి మనం జరుపుకుంటున్నాం. అలాంటి వ్యక్తి యొక్క బర్త్డేని మనం ఈరోజు మన కళాశాలలో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇప్పుడు జువేరియా స్వామి వివేకానంద గారి గురించి చెప్పాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. శ్రీ బాట్నీ అధ్యాపకులు శ్రీ జగన్మోహన్ సార్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. Respected principal, vice principal, and all the dignitaries and layers, and all the teaching and non-teaching. Rabindranath Datta was one of the famous, most influential spiritual leaders of the 19th century in India. He was a key figure in the introduction of the India philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world, and is credited with raising interfaith awareness, bringing Hinduism to the status of a major world religion during the late 19th century. Vivekananda was born in 1863 in Calcutta, India, into a traditional Bengali family. From a young age, he showed a deep interest in spirituality and religion. He began studying the Bhagavad Gita and other Hindu texts, and eventually became a disciple of the famous Indian mystic Ramakrishna. After Ramakrishna's death in 1886, Vivekananda spent several years wandering throughout India, teaching and promoting the ideas of Vedanta
in 1893, he was selected as delegate to attend the World's Parliament of Religion in Chicago, where he gave a famous speech introducing Hinduism to the Western world. His speech was well received and he won on the lecture extensively throughout the United States and Europe, attracting large crowds and gaining many followers. Vivekananda's teaching emphasized the importance of individual effort in spiritual practice, and he encouraged people to seek direct experience of the divine rather than relying solely on the authority of religious texts. He believed that all religions were different paths to the same ultimate goal, and he promoted religious tolerance and interfaith understanding. Vivekananda was also a strong advocate for social reform in India. He believed that the country's spiritual regeneration was intimately connected to its social and economic progress, and he encouraged the education and empowerment of women, the removal of caste distinction, and the promotion of scientific with reviving interest in yoga in India and the West. He wrote extensively on the subject and taught the practice of yoga as a means of attaining self-realization. He also popularized the idea that yoga was not just a physical practice but also spiritual, one which can be used to achieve connection with the divine. In conclusion, Swami Vivekananda's contribution to the spiritual and social advancement of India and the world were of great significance. His ideas and teaching continue throughout the Ramakrishna relevance today. As we face the challenges of increasing religious tolerance and extremism in the different parts of the world. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Next, I would like to call upon Afshana Begum. सदर मुदर्रिस साहब और लेक्चरर्स और मेरी प्यारी साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अफशा बेगम है और मैं बीजेपी साल अव्वल की तालिब इल्म हूँ और मैं आज आप तमाम के बारे में स्वामी विवेकानंद के बारे में बताऊंगी और उनकी पैदाइश के दिन हम तमाम आज प्रोग्राम मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद उनकी पैदाइश 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक बस्ती शिमला में हुई थी। इनके वालिद विश्वनाथ दत्त हाईकोर्ट के एक निहायत ही कामयाब वकील थे। इनकी वालिदा का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद की तालीम और तरबियत में वालिदा का खुसूसी असर था। स्कूल और कॉलेज में नरेंद्रनाथ की काबिलियत और जहानत के काबिल थे। इनके वसी मुतालिया और तेज याददाश्त के हर तरफ धाक की। इनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक मर्तबा लिखा कि मैंने इतनी काबिलियत और जहानत के मालिक किसी लड़के को नहीं पाया। ये बड़ा उसका नुमाया काम करेगा। कॉलेज की तालीम के बाद मजहब की सच्चाई के तलाश में नरेंद्रनाथ इस्लाही तहरीकों में हिस्सा लेने लगे। इस तलाश में वो प्रेमहंस श्री स्वामी रामकृष्णन के पास डिक्शनरी के मंदिर में पहुंचे और फिर वहीं के होकर रह गए। श्री रामकृष्ण की वफात के बाद नरेंद्रनाथ ने इनके तमाम शागिर्दान को जमा करके रामकृष्ण मिशन की बुनियाद रखी और वतन की तरक्की और बहबूदी के लिए काम करने का फैसला किया। अपने एक मजमून में वो लिखते हैं कि मैं हिंदुस्तान भर घूम आया हूँ। मुझे अपने आंखों से अवाम की गरीबी और मुसीबत देखकर बहुत ही दुख हुआ और मैं खूब रोया। मेरा अकीदा है कि जब तक तंगदुस्ती और दुख को मिटाया ना जाएगा, मजहब और अदब की आंख की बातें करना बिल्कुल फजूल है। मैंने अपने हम वतनों की भलाई और बहबूदी के लिए अमेरिका जाने का इरादा रखा था। वो मजहब ही क्या जिसके साए में गरीबी बसती हो। मेरा दिल अब बहुत वसी हो गया है और मुझे मुल्क भर की दर्द का एहसास है। चुनाचे वतन की इज्जत में इजाफे में दुनिया की हमदर्दी हासिल करने की खातिर स्वामी विवेकानंद 1893 में
रिलीजियस में शिरकत करते हुए अपनी तकरीर से तहलुका मचा दिया। इन्होंने दुनिया को कायनाती कुव्वत का पैगाम देते हुए कहा कि खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं और वो सबके सब किस तक पहुंचाने की अहलियत रखते हैं। अगर दुनिया में कोई एक आलमगीर मजहब होना मुमकिन है तो वही मजहब हो सकता है जिसका किसी खास मुकाम या वक्त से कोई ताल्लुक ना हो और जो किसी भी तरह महदूद ना हो। अब यूरोप और अमेरिका में 3 साल के क़याम के बाद स्वामी विवेकानंद अपने वतन वापस लौटे। वतन के दौरों में इनकी जाबख्श पैगाम से लोगों में एक नई जिंदगी की लहर दौड़ गई। इन्होंने फरमाया, हमारा फलसफा वही है जो हमारी कुव्वत में इजाफा करे। यही एक मियार है हकीकी रूहानियत का। यही कसौटी है सच्चे मजहब की। जो फलसफा इंसान को जिस्मानी, ज़हनी, अखलाकी या रूहानी कमजोरी की तरफ ले जाता है वो सरासर झूठ है। इसके पास न भटको, वो मौत है जिंदगी नहीं। सच वही है जो तक़वियत दे, सच ही पाकीज़गी है, सच है इल्म है, झूठ जहल का दूसरा नाम है। सच के अलम बरदार रहो, उठो और कमजोर कर देने वाले रिवाजों को खैर कर दो। सच्चाई पेचीदा नजरियों का सिलसिला नहीं, हकीकत सादगी के मुतरादिफ है। मजीद इन्होंने कहा, हिंदुस्तान का मरकजी मौजू इसका तारीखी रास्ता, इसके राह का बुनियादी सुर रूहानियत है। कोई ताकतवर हो या कमजोर, ऊंची जात का हो या नीची जात का, अमीर हो या गरीब, आलिम हो या फाजिल या अनपढ़ हो, सब में एक ही लाजवाल रूह आजम है जिसको जानने से ताकत हासिल होती है और नेकी और भलाई के काम करने की बेकरार कुव्वत बेदार हो जाती है। उठो, जागो और आगे बढ़ो। रुकना तुम्हारा काम नहीं है जब तक मंजिल मकसूद तक ना पहुंच जाओ। बढ़ते चलो। अपने आप से गाफिल होना ही खुदा से मुनकर होना है। उठो और यकीन खुदी का ऐलान कर दो। स्वामी विवेकानंद ने इसी तरह वतन परस्ती और खिदमत खल्क का प्रचार किया। इस काम को सर अंजाम देने के लिए कई मठ और आश्रम कायम किए। अमेरिका के बाद लंदन, पेरिस, वियना, इस्तांबुल, एथेंस और कायरा के दौरे के बाद वो दिसंबर 1900 में अपने वतन हिंदुस्तान वापस पहुंच गए और कलकत्ता में अपने शागिर्दों की तालीम और तरबियत में मशगूल हो गए। मगर जल्द ही इन्होंने सब कामों से अपना ताल्लुक खत्म कर लिया और कुछ ही अरसे बाद 39 साल और चंद महीने की उम्र में दुनिया से विदा हो गए। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो जिंदा जावीद हैं। अपने अफकार और नजरियात के सहारे वो अब भी अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इनकी वजह से हमें ये मालूम होता है कि हमें भी आगे पढ़ना है, तालीम अच्छे से हासिल करना है। इतने अच्छे लेक्चरर्स होने के बाद अपनी तालीम को आगे बढ़ाना है और हमें भी इन्हीं की तरह की प्लस पे हमें लेक्चर के और हासिल करना है इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला हमारे साथ है तो हम भी अपनी तालीम को अच्छे से जारी रखकर हम भी ऐसे लेक्चरर्स बन सकते हैं। जज़ाकिल्लाह। थैंक यू, अच्छा स्पीच दिया। और मैं अरबाज को दावत देता हूँ अपना ख्यालात को पेश करें। सदर मुदर्रिस साहब, प्रिंसिपल साहब और असातिज़ा साहिबान और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज नौजवानों का दिन है, नौजवानों का कौमी दिन है। आप में से कोई बोल सकता है कि आज हमारा दिन है? बोल सकते? आज हमारा दिन है और हमें इसको मनाना चाहिए। किस बिना पर?
और हम लोगों को अपने आप को टटोल कर देखना चाहिए कि जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने काम सरंजाम दिए हैं, उसी तरह हमने कौन से काम सरंजाम दिए हैं, ये सब देखना चाहिए और अपनी जिंदगी का मुतालिया करना चाहिए कि मैंने कौन सा काम किया है, कौन सा काम नहीं किया है, जिससे अपने वालिदीन का, अपने लेक्चरर्स का और अपने कॉलेज या स्कूल का नाम रोशन किया है। स्वामी विवेकानंद के आप तो स्टोरी सुन चुके हैं ना, उसी के मुताबिक आप लोगों को अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना चाहिए जिस तरह के स्वामी विवेकानंद साहब ने किया था। उसी तरह एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके नौजवानों की सूरत खुद ही औलाद। आप सब जानते हैं कि बॉर्डर पे हमारे नौजवान जैसे हम ही रहते हैं। इंशाल्लाह हम लोग अभी पढ़ लिख कर बॉर्डर पे जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं भारत में हर साल 12 जनवरी को कौमी यौम नौजवान मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद के सालगिरह के मौके पर मनाया जाता है। 1984 से भारतीय हुकूमत ने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के सालगिरह यानी 12 जनवरी को कौमी यौम नौजवान मनाने का ऐलान किया। इसके बाद 1985 में ये पूरे मुल्क में मनाया जाने लगा। हुकूमत का बुनियादी मकसद स्वामी विवेकानंद के नजरियात और उनके जरिए नौजवानों को हौसला अफजाई करके मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल बनाना है। ये नौजवानों की दायमी तवन्नाई बेदार करने के साथ साथ मुल्क की तरक्की याफ्ता बनाने का एक बहुत बेहतरीन और बड़ा तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने न सिर्फ भारत के नौजवानों को ज़हनी, फिक्री और जिस्मानी तौर पर मजबूत होने की तरकीब दी, बल्कि पूरी दुनिया को पहली बार हिंदुस्तानी फलसफा और रूहानियत से मुतारुफ कराया। दुनिया की मशहूर शख्सियत स्वामी विवेकानंद की पैदाइश 12 जनवरी को हुई थी। उसी अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 को नौजवानों का आलमी साल करार दिया। इससे मुतासिर होकर हुकूमत हिंद ने 1984 में यौम यूथ मनाने का फैसला किया। इस दिन को मनाने के लिए भारतीय हुकूमत ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की पैदाइश का इंतखाब किया था। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी जिंदगी नौजवानों को मुतासिर करती थी। सिर्फ 35 साल की उम्र में इन्होंने हिंदुस्तानी फलसफे का परचम अमेरिका और यूरोप तक बुलंद कर दिया था। रामकृष्ण मिशन जैसी समाजी खिदमत को तंजीम की, बुनियाद रखी और विज्ञानियत की नौजवानों तक पहुंचाई। इसी से अपने एक शेर के साथ अपनी जगह लेता हूँ। शान आंखों में न दस्ती थी जहांदारों में, शान आंखों में न दस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो नौजवानों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। థ్యాంక్ యూ అర్బాజ్. ఇప్పుడు మన కళాశాల రాజకీయ శాస్త్ర అధ్యాపకులు సోదరుడు సురేందర్ సార్ గారిని స్పీచ్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పూజలు పెద్దలు మన కళాశాల రథసారథి డాక్టర్ అస్లాం ఫరూక్ సార్ గారు, మరియు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఆయిషా మేడం, రాము సార్, తన్వీర్ సార్, ముజఫర్ అలీ, జగన్మోహన్ సార్, ప్రీతి మేడం, బాదర్ మేడం, బాలాజీ, కిరణ్ మేడం, సిద్ధప్ప సార్, అందరి మిత్రులందరికీ, ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థులారా అందరికీ నా నమస్కారాలు. అయితే వివేకానంద కేవలం ఒక ప్రాంతానికో, ఒక మతానికో లేదా ఒక భాషకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి కాదు. వివేకానంద భారతదేశం యొక్క గొంతుక, భారతదేశం యొక్క స్ఫూర్తి. మీరు ఎంతో మంది భారతదేశంలో ఉండబడినటువంటి గొప్ప గొప్ప రాజకీయ నాయకుల్ని చూడండి, వాళ్ళు మీకు స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి పర్సన్స్ ఎవరంటే అందులో ఖచ్చితంగా వివేకానంద ఉంటాడు. అదేవిధంగా మీరు ఎంతో మంది మోటివేషన్ స్పీకర్స్ మాట్లాడుతుంటే చూడండి, అందులో వివేకానంద కొటేషన్స్ 100% ఉంటాయి. అంత గొప్ప వ్యక్తి. పేదరికంలో పుట్టిన, ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు ఓర్చి అమెరికాకు వెళ్ళి చికాగో నగరంలో భారతదేశ ఖ్యాతిని చాటి చెప్పినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. ఆయన కొటేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సూటిగా పుచ్చుకునేటట్టు, ఒక మనిషిని రాకెట్ లాగా పైకి తీసుకెళ్లే విధంగా ఉంటాయి. ఇంకేమంటాయంటే ఇనుప నరాలు వజ్ర కఠోరమైన మనసు, ఇనుప నరాలు ఉక్కు కండరాలు వజ్ర కఠోరమైన మనసు ఉన్న 10 మంది చాలు, నేను ఈ ప్రపంచాన్ని జయిస్తా అంటాడు.
అంటే అలాంటి మనస్తత్వం కలిగినటువంటి ధీరోదత్తమైనటువంటి యువత సంపద భారతదేశంలో ఉంది అన్నది ఆయన ప్రపంచానికి చాటదలుచుకున్నారు. అంత గొప్ప కొటేషన్స్ ఉంటాయి ఆయన. అదేవిధంగా వివేకానంద ఒక చిన్న మోటివేషన్ కథ ఉన్నది, చాలా ఫేమస్ ఆయన పుస్తకాల్లో. ఆ ఒక చిన్న కథ స్టోరీ చెప్పి ముగిస్తారు. ఏంటంటే ఒక పులి, టైగర్ దారి తప్పి చిన్న పులి మేకలలో కలిసిపోతుంది. కలిసిపోయి మేకలతో సహజీవనం చేస్తుంది, వాడితో కలిసి ఉంటుంది, వాడితోనే ఉంటుంది. లాస్ట్ కు అది కూడా మేకలతో పాటే గడ్డి తింటుంది. ఒకరోజు అడవి నుండి అలా పులి బయటికి రాగానే మేకలన్నీ పారిపోతుంటాయి. మేకలతో పాటు ఈ పులి కూడా పారిపోతుంది. అప్పుడు ఈ పులి పోయి దాన్ని పట్టుకుంటుంది. పట్టుకొని మనం పులులము, గాండించాలి అని చెప్పి ఆ పులిని తీసుకుపోయి నీళ్ళల్లో చూపిస్తుంది. నీకు చారాలున్నాయి, నాకు చారాలున్నాయి, నేను ఎట్లా ఉన్నానో నువ్వు అట్లే ఉన్నావు అనగానే ఆ పులి కూన అది కూడా గాండిస్తుంది మేల్కొని. అట్లనే ఆయన ఉద్దేశం, ఈ స్టోరీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతీయులలో గొప్ప అతీతమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నాయి. భారతీయులు మేధావులు, వాళ్ళు మేల్కొనాలి అనేది ఆయన సందేశం. కాబట్టి వివేకానందుని యొక్క ఆశయాలు నెరవేరుస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సార్, మోటివేషనల్ స్టోరీ చెప్పి మా అందరినీ ఉత్తేజపరిచినందుకు. మీరందరూ टाइगर साथ गोट सा, टाइगर के जैसा जीना, गोट के जैसा नहीं जीना. నెక్స్ట్ డాక్టర్ ఆయిషా బేగం గారిని తన అమూల్యమైన సందేశాన్ని వాసనగా కోరుచు. मोहतरम प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी साहब, लेक्चरर्स और मेरे अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आज हम सब यहाँ पर 12 जनवरी यौम नौजवान मनाने बैठे हैं। तो आप तमाम लोगों का दिन है, जैसा कि अभी अरबाज बता रहे थे, यूथ डे हमारा दिन है, तो आप लोगों का दिन है। तो आज के इस दिन पे जो स्वामी विवेकानंद ने जो पैगाम दिया है, स्वामी विवेकानंद की पैदाइश का दिन है ये, इसीलिए ये मनाया जा रहा है। जैसा कि बताया गया 1986 ईस्वी से ये मनाया जा रहा है। तो आज के दिन स्वामी विवेकानंद का क्या पैगाम था कि हम सबको ये याद दिलाने के लिए ये दिन मनाया जा रहा है कि हम में भाईचारा होना चाहिए, उखुवत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक होने चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा है कि जात, ऊंची जात, नीची जात, निचली जात, सब में एक रूह होती है, और रूह क्या है? अजीम है। रूहानियत को अहमियत दी है कि आदमी कौन सा है, बड़ी जात का है, छोटी जात का है, कम जात का है, ये नहीं। आदमी के अंदर रूह है, रूहानियत पर तवज्जो दी है और भाईचारे पर बात कही है। तो रूह के लिए कहा गया है कि हमको अपने आप को पहचाना है। और क्या कह रहे हैं वो कि अपने आप से गाफिल मत हो। अभी पढ़े ना, अपने आप से गाफिल नहीं होना, अपने आप को पहचानना है। देखो, अल्लामा इकबाल भी क्या कहे थे, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू, मंजिल भी तू, रहबर भी, राह तू रहबर भी तू, रहरो भी तू, मंजिल भी। तो तुम खुद ही राह दिखाने वाले हो, तुम खुद एक रास्ता हो, खुद को पहचानो, तुम खुद एक मंजिल हो और तुम खुद दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हो। तो अपने आप को पहचानने की बात है यहाँ पर, अपने आप से गाफिल नहीं होने की बात है। तो हमको पहचानना चाहिए कि हम क्यों इस दुनिया में आए, क्या मकसद से। तो हमको नेकियां करना है, अच्छाई का पैगाम दिया गया है यहाँ पर। उन्होंने भी नेकी का कहा है कि किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, अच्छा काम करना। गरीबी और तकलीफों को देखकर वो बहुत दुखी होकर अमेरिका चले गए। तो पैगाम क्या दे रहे हैं कि हमको गरीबी मिटाना है, उसके लिए जद्दोजहद करना है, मेहनत करना है ना, अपने कदमों पर खड़े रहना है, अच्छा काम करना है और कॉलेज का नाम रोशन करना है, अपने वालिदिन का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क की तरक्की का सोचना है,
اس کے لیے ہم کو کچھ اچھا پلان کر کے اٹھیے، آج منصوبہ بنا کر اٹھیے، کچھ اچھا ٹارگیٹ نشانہ بنائیے کہ ہم کو اگلے دنوں میں کیا کرنا ہے، کیونکہ نتھنگ از امپاسبل ٹو دی مین ہو ہیز فیتھ. تو فیتھ یعنی آپ کا یقین، ایمان اپنے خدا پر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ اگر آپ ٹھان لیے، ہمت کریں تو ضرور آپ اپنی منزل مقصود کو پا سکتے ہیں. جزاک اللہ سر کہ مجھے موقع دیا گیا، آپ سب کا بھی شکریہ. थैंक यू मैडम. अब मोहम्मद तनवीर सर हिस्ट्री लेक्चरर लोग अपना स्पीच दे दें. अस्सलाम वालेकुम. स्टेज पे तशरीफ फरमा आले जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर असलम फारूक साहब और मेरे अजीज लेक्चरर्स साहिबा और अजीज तलबा और तालिबात, आज का ये प्रोग्राम नेशनल यूथ डे 1985 ईस्वी में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने स्वामी विवेकानंद की पैदाइश के दिन मनाने का ऐलान किया था. उस दिन से आज तक ये प्रोग्राम मनाया जाता है. 12 जनवरी को ये प्रोग्राम मनाया जाता है. ये प्रोग्राम मनाने का मकसद और स्वामी विवेकानंद की तालीमात को आम करना था. उनकी तालीमात ये थी कि नौजवान को न सिर्फ अपने किरदार को बुलंद करना है बल्कि मुल्क को भी आगे ले जाना है. उन्होंने अपने फलसफे में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि नौजवान को अपनी कौम की, अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए और अपने भी ख्याल रखना चाहिए. इस तरह से उन्होंने यूरोप में हिंदुस्तानी कल्चर को, यूरोप में हिंदुस्तानी तहजीब को इंट्रोड्यूस करवाया था, तारुफ करवाया था और अपनी तालीमात के जरिए से हिंदुस्तानी कल्चर से लोगों को मुतासिर भी किया था. उसी तरह से उनकी तालीमात से तमाम नौजवानों को मुतासिर होना चाहिए और उनके बताए हुए उसूलों पर, उनके बताए हुए बातों पर अमल करते हुए अपने किरदार को और अपने तालीम को आगे बढ़ाना चाहिए. इतना कहने का मौका देने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. अल्लाह. Thank you, Tanvir sir. Now I would like to invite our college principal sir, Dr. Aslam Farooq sir, to give speech. Good afternoon to all. Respected faculty members और dear students, जी आप लोग देख रहे होंगे कि हर 2-4 दिन के बाद इस हाल में कोई ना कोई प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे जो कैलेंडर में मुख्तलिफ अय्याम होते हैं उन्हें मनाएं और उस ताल्लुक से आपको कुछ अहम मालूमात फराहम करें फिक्र की बात. तो मैं जैसे रोजाना आपस से ट्रैवल करता हूँ तो सुबह में संगरडी पार हुए बाद मैसेजेस देख रहा था, रामू साहब के मैसेज करी, ये स्लाइड बताए और संगरडी से जहीराबाद आने तक ये प्रोग्राम की तैयारी में फोन पे किया और मैसेज रखा कि 12 बजे प्रोग्राम होगा. फिर उसके लिए हम इंग्लिश में और उर्दू में 2 स्टूडेंट्स को गाइड भी किए. बहुत अच्छी तकारीर आपने की है, मुबारकबाद और इस तरह का सिलसिला आप लोग जारी रखिए. तो बोलना ये है कि वक्त तेजी से गुजर रहा है और गुजरते वक्त के साथ हमारी जिम्मेदारी क्या है. बहसियत प्रिंसिपल मेरी जिम्मेदारी थी कि कॉलेज में ये प्रोग्राम मुनाकिद करने के लिए लेक्चरर्स को इत्तला दी जाए और फिर क्या बोलना है वो भी तैयारी के लिए हमने कोशिश की और एक कामयाब प्रोग्राम हुआ. मैं रामरुल साहब और कॉलेज के सभी लेक्चरर्स और तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ. तो आज नौजवानों का कौमी दिन है स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के ज़िम्मा में. थोड़ा सा हमको सोचना है कि एक इंसान जिसने सिर्फ 40 साल से कम उम्र पाई कैसे इतना मशहूर हुआ कि हर साल हम उसका यौम पैदाइश मना रहे हैं और उसकी तालीमात ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि आलमी सतह पर लोग कबूल करते हैं और उनका जो मिशन है रामकृष्ण मिशन हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर उनके मठ है, यहाँ पर भी हैदराबाद में है.
اور ان کی کئی کتابیں ہیں انگلش میں، تیلگو میں اور دیگر زبانوں میں. بچے جب تحریری مقابلے اس میں انعام حاصل کرتے ہیں تو ان کی کتابیں بھی انعام میں دی جاتی ہیں. سریندر صاحب نے کہا کہ ان کے اقوال بہت سے ہیں، تو ہم کو ان کی زندگی سے کیا سبق لینا ہے. تو وویکانندا کے بارے میں بات آتی ہے کہ یہ بنگال سے تعلق رکھتے تھے. اور دیکھیے کہ آپ تاریخ پڑھیں ہندوستان کی آزادی سے پہلے جو غلامی کا دور تھا انگریزوں کا، تو اس وقت ہندوستان کے کچھ علاقوں سے بڑے بڑے مفکر اٹھے. جب تاریکی ہوتی ہے تو انسان روشنی کی تلاش کرتا ہے، روشنی اپنے اندر بھی محسوس کرتا ہے اور اس روشنی کو اپنے خیالات کے ذریعے باہر لے کے. اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہندوستان کی غلامی اور روشنی کی پیداوار تھے اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دنیا کو متاثر کیا. تو بنگال میں وویکانندا کے علاوہ ٹیگور بھی وہیں سے اٹھے. یہ وہ ٹیگور ہیں جن کا لکھا ہوا کی ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان سے یہ جنا گنا منا خاص طور گیتانجلی ان کی نظموں کی کتاب تھی جس پر ان کو نوبل انعام ملا. تو ٹیگور کا تعلق بھی بنگال سے ہے. اور آپ ایک دادا بھائی نوروجی نام سے شاید آپ نے تاریخ میں نام سنا ہوگا، یہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں کام کرتے. تو وویکانندا کا تعلق بھی کلکتہ سے تھا. تو اتفاق کی بات ہے کہ اس زمانے میں جبکہ تعلیم کا تصور ہی نہیں تھا، ان کو انگلش میڈیم کی تعلیم ملی تھی. تو پہلا کام جو ہم کو سمجھنے کا ہے کہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے دوسروں کی زبان بھی سیکھنا ہے. عالمی سطح پر انگریزی زبان کا چلن ہے، تو آپ کے اندر کوئی اچھی فکر کی بات ہے، اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ کو دنیا کی زبان سیکھنا ہے. تو آپ بھی وویکانندا کی زندگی سے یہ سبق لیجئے کہ موجودہ زمانے میں ہندوستان میں جو سماجی مسائل جہیز کی لعنت ہے، مذہبی منافرت ہے اور بے روزگاری کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ پیسہ کسی ایک کے پاس ہی جمع ہو جا رہا، سب غریب ہے، سماجی مساوات نہیں ہے. اس زمانے میں وویکانندا نے اپنے خیالات پیش کیے تھے. آج بھی ہندوستان میں اس طرح کے خیالات پیش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی فکر کو باہر لانا ہے اور اس کا ذریعہ آپ تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے آپ دنیا تک اپنی بات پہنچا سکتے. افسوس کی بات ہے کہ ریل جسے کہتے ہیں، ریل سمجھ رہے نا نوجوان بچے، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ اور شاید یوٹیوب پہ شارٹس بھی ہے، اس میں آپ اپنی اچھی بات پیش کر سکتے ہیں، دنیا والے کر رہے. لیکن ہمارے بہت سارے نوجوان میرا دل یہ پکارے آجا کے نام سے اپنے ریل بنا رہے. تو دیکھو دنیا میں لوگ ویسے بھی مشہور ہو رہے. آپ لوگ جو ہے وویکانندا کی زندگی سے سبق لے کر شارٹ میں سے کوئی اچھی بات رکھیے. سوچو لائبریری میں بیٹھیے، کہیں بھی بیٹھیے، بعض لوگوں کا خیال ہے جو آپ کو اس پہ عمل نہیں کرنا. بیت الخلاء میں بیٹھے بھی جو لوگوں کو اچھے خیالات آتے ہیں. تو بہرحال آپ رات میں سوتے وقت کہیں پر بھی ذرا سا سوچئے کہ ہم جس تلنگانہ میں رہ رہے ہیں آپ کو اچھی زندگی مل رہی ہے کیا، اچھے دن آ رہے ہیں کیا، ہندوستان میں رہ رہے ہیں آپ کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. بحیثیت ہندوستان کے شہری we are the citizens of India, what we can do for the development of nation India. تو سوامی وویکانندا مفکر تھے، فلاسفر تھے. مفکر کہتے ہیں سوچنے والے. کچھ لوگ جینیس ہوتے. ابوالکلام آزاد کے بارے میں بھی کوئی اسکول کی، کوئی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہیں کیے وہ، لیکن ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت بڑا کام کیا. ان کی اسپیچز پڑھیے اور ان کے تحریر. ایسے ہی وویکانندا بھی بہت بڑے فلاسفر تھے. مذہبی اعتبار سے انہوں نے جو اس زمانے میں کہ ستی کی رسم بھی ہوتی تھی کہ شوہر اگر کسی عورت کا مر گیا تو اس عورت کو زندہ جلا. راجا رام موہن رائے کا نام آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کام کیا اور بیواؤں کی شادی کا بھی سلسلہ شروع کیا. تو ہندوستانی سماج میں کہیں نہ کہیں کچھ خلافات آ گئے. وویکانندا کیا کیے، انہوں نے ایک ایسے خدا کا تصور پیش کیا جو باؤنڈری سے پرے ہے. وہ کوئی ایک محدود علاقے کا، محدود تہذیب کا، محدود زبانوں کا خدا نہیں بلکہ سب کا خدا ہے. انہوں نے مورتی پوجا کی بھی مخالفت کی تھی اس زمانے میں. تو یہ وویکانندا کے افکار آج بھی عالمی سطح پر پسند کیے جاتے ہیں. تو ان کے افکار کو پڑھیے، جیسے سردار صاحب نے کہا ان کے کوٹیشنز کو جمع کر کے آپ کچھ سلائیڈ شو بنائیے
जैसे कलाम साहब भी बाद में मशहूर हुए हमारे साइंसदान, उनके भी बहुत सारे कोटेशंस हैं। तो देखिए आज आपके पास एक बड़ी हिस्ट्री है जिससे आपको फायदा उठाना। हम मौजूदा जिंदगी में बेहतर इंसान तभी बन सकते हैं जब हमारे माजी में जो अच्छे अच्छे लोग गुजरे उनकी जिंदगियों का मुतालिया है। तो विवेकानंदा ने शुरू के 8-10 साल 15 साल की जो तालीम हासिल की उसमें उन्होंने अंग्रेजी में तालीम हासिल की, दुनिया का मुतालिया किया, हिंदुस्तान के लोगों की गुर्बत पे उनको अफसोस हुआ, तो उन्होंने फैसला किया कि अमेरिका में उस जमाने में 1893 में आलमी मजाहिब की कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही, सभी मजाहिब, तो हिंदुस्तान से ये शिरकत किए और वहां जाकर जब उन्होंने तहरीर शुरू की तो कोटेशन इनका मशहूर है कि अक्सर अंग्रेजी में तहरीर करते हुए लोग लेडीज एंड जेंटलमैन हो, खवातीन व हजरात, इन्होंने जो अपनी तहरीर शुरू की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जब उन्होंने ये जुमला कहा तो पूरा हाल तकरीबन 2-3 मिनट तक खड़े होकर उनके लिए तालियां मारे कि सामने वालों को भाई कहना, बहन कहना बहुत बड़ी बात। तो इन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब पेश की वहां पर कि हम सामने वालों को कैसे देखें। फिर उन्होंने अपने हिंदुस्तान की जो भी अच्छाइयां थी और मजाहिब के एतबार से जो अच्छाइयां, तो उन्होंने मजाहिब को जोड़ने का काम किया कि दुनिया में हर मजहब में अच्छी बातें होती हैं और मजहब यही सिखाता है कि इंसान में इंसानियत होना चाहिए। अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान। आज भी हम इंसानियत को ढूंढ रहे हैं लेकिन जगह जगह हम मफाद परस्ती पे आ जाते हैं कि नौजवान बच्चा बस में बैठा हुआ है, बूढ़ा आदमी आ गया। अब इंसानियत क्या है कि नौजवान खड़े होकर बूढ़े को सीट देना चाहिए, लेकिन मफाद परस्ती इतनी आगे मैं सीट क्यों? तरबियत का मसला है, क्या ये तरबियत का मसला है। ऐसे ही जो है किसी को सड़क पार कराना है, एक नोट गिर गया तो तलाश करना इसका ओनर कौन है, उसके बाद उस तक पहुंचाने की कोशिश। स्मार्टफोन देखिए हमारे कितने फोन चोरी हो जाए, हमारी इंसानियत इतनी गिर गई है, फोन चोरी होने के 1 मिनट के अंदर स्विच ऑफ हो जाना, सिम निकाल के फेंक दे और 5-6 हजार के मुनाफे के लिए। वरना आज भी वेस्टर्न कल्चर में ऐसे ऐसे इंसानियत है कि बाद गरीब लोग एक बॉक्स रख देते, उसके अंदर अपने घर के कपड़े, अपने घर का खाना जो बचा हुआ उसमें रख देते, जिसको जरूरत है वो आके लेके चले जाते। लंदन में ही गरीब सबर्बन इलाकों में एक शॉप है, वहां एक अलमारी रखती है, उसके अंदर अंडे हैं बेचने के, बाजू कुछ पैसों का डब्बा है, आपको जितनी तादाद में अंडे चाहिए ले लीजिए और उसके पैसे उसमें रख दीजिए, ईमानदारी से कारोबार चलता। अब आप सोच लीजिए कि हमारे समाज में अगर कोई चीज ऐसा रखती है तो शाम तक उसका क्या हाल। तो बोलना ये है कि तब्दीली हमारे अंदर आना है, कब आएगी? कलाम साहब के बारे में पढ़ रहे और आपके क्या कहते हैं सर सैयद अहमद खान बोले, हम APJ अब्दुल कलाम बोले, अबुल कलाम आजाद है, इकबाल है, जितने भी हमारे पास एक बड़ी फिक्र की बातें मौजूद है। तो थोड़ा सा मुताले की आदत डालिए, बड़े लोगों के बड़े कारनामे क्या हैं, उनसे हम क्या सीख सकते। जैसे आज हम विवेकानंदा को याद कर रहे, अगर हमारे अंदर ये जो कमरे में बैठे हुए कोई मुफक्किर है उसको भी हम आगे चल के दुनिया याद कर सकती है। जैसे आयशा मैडम बोले कि आज के दिन से कुछ सबक लेके उठिए, तो आप लोग कम से कम थोड़ा सा वक्त निकालो, हम कौन है, दुनिया में आपको क्यों भेजे, आपके पास जवानी है, ताकत है, अकल है, इल्म है, इसका खुद भी फायदा उठाइए, अपने घर को बेहतर बनाइए, समाज को बेहतर बनाइए और सोसाइटी को कुछ दीजिए, यही पैगाम है। तो आज के इस प्रोग्राम में यूथ डे के तौर पर आप लोगों को यही मैसेज है कि हम अपनी जो भी डेवलपमेंट है, तालीम के एतबार से, स्पोर्ट्स के एतबार से, दीगर एक्टिविटी के एतबार से थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ाइए आपकी, और कुछ लिखिए, कुछ बोलिए। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आपके हाथ में सोशल मीडिया है, पावरफुल मीडिया है। आपकी बात अगर अच्छी हो गई तो वायरल हो सकती है। आजकल वायरल जो आप लाइव बात है, अगर आप में भी कुछ सलाहियत है तो अपनी बात को वायरल कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। तो विवेकानंदा की हमें पैदाइश पे आप लोगों को यही पैगाम है कि उनके अफ्कार, जैसे अभी इन्होंने उर्दू में जो तकरीर की है, किताब भी है उनकी, डाउनलोड करके आपको हम शेयर करेंगे उर्दू में। इसी तरह इंग्लिश में भी इनके अफ्कार को पढ़िए। स्लाइड शो के तौर पे अगर कोई अफ्कार इनके बनाते हैं तो अगले प्रोग्राम में हम इनको बताएंगे।
और इनकी जिंदगी से सबक हासिल करते हुए आप भी एक अजीम इंसान बने। बहरहाल आज के दिन के मौके पर यही आपके लिए मैसेज था। आज के प्रोग्राम के इनेकाद के लिए सबका शुक्रिया। थैंक यू। Thank you very much, sir, for your motivational speech. Social media చాలా पावरफुल मीडिया है। हेलो, पावरफुल मीडिया है। सो आपको इस्तेमाल करो, आप भी शेयर हो सकते और दुनिया को एक मैसेज दे सकते। नहीं, आपके आपके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट को पूरे लोगों को पता ना बोलो तो सोशल मीडिया एक बड़ा विपन है, उसको यूज करके आप शेयर हो सकते। ओके, और ये यूथ डे है, यूथ नेशनल यूथ डे है। యూత్ కిస్ దేశ్ మే జ్యాదా रहता, ఏ దేశంలో అయితే యువజనులు ఎక్కువగా ఉంటారో ఆ దేశం తొందరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఎకనామిక్స్ లో చదువుకుంటాను. ఎందుకంటే ఎకనామిక్స్ లెక్చర్ కాబట్టి ఆ విషయం మీకు చెప్పాలని చెప్తున్నా. ఏ దేశంలో అయితే యువజనులు ఎక్కువగా ఉంటారో, యూత్ ఎక్కువగా ఉంటారో ఆ దేశం తొందరగా అభివృద్ధి సాధించగలుగుతుంది. మన దేశంలో యూత్ చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉంది, కానీ 47వ సంవత్సరం నుంచి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం, ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉన్నాం. 75 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతున్నాం. అంటే అర్థం ఏంటంటే యూత్ కరెక్ట్ గా పనిచేయడం లేదని అర్థం. यूथ जितना वर्क करना उतना वर्क नहीं कर रहा। उस वास्ते अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर यूथ सही काम करे तो अपन डेवलप्ड कंट्री हो सकते। तो विवेकानंद का स्फूर्ति, उनसे मोटिवेशन होके अब जो क्लास में है, ये मीटिंग में है, उनसे मोटिवेट होके अपना टैलेंट अच्छा शेयर कर लिए तो अपन भी डेवलप्ड कंट्री हो सकते। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू आवर प्रिंसिपल सर फॉर गिविंग